गुण पृथक विधा द्रव्य गुण प्रियो संपद्यते अर्था शैलिंगनामभि विशुद्ध विज्ञान धन स्वरूपता 4:21-34 The Supreme Personality of Godhead is transcendental and not contaminated by this material world. But although he is concentrated spirit soul without material variety, for the benefit of the conditioned soul, he nevertheless accepts different types of sacrifices performed with various material elements, rituals, and mantras, and offered to the demigods under different names according to the interests and purposes of the performance. For material prosperity, there are recommendations in the Vedas for various types of yajnas, that is sacrifice. So, for material prosperity, there are recommendations in the Vedas for various types of yajna, sacrifice. In Bhagavad Gita 3.10, it is confirmed that Lord Brahma created all living entities, including human beings and demigods, and advised them to perform yajna according to their material desires. These performances are called yajnas because their ultimate goal is to satisfy the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. The purpose of performing yajnas is to get material benefit, but because the aim is to simultaneously satisfy the Supreme Lord, such yajnas have been recommended in the Vedas. Such performances are of course known as karma or material activities, and all material activities are certainly contaminated by the three modes of material nature. Generally, the karma ritualistic ceremonies are performed in the mode of passion, yet the conditioned souls, both human beings and demigods, are obliged to perform these yajnas because without them one cannot be happy at all. So how the living entity can be happy? This is always the focus of the scriptures. Everyone is centered around being happy and satisfied in one's life. So here it's mentioned that by the performance of yajnas, that is Sankirtan yajna, one will be happy because the Supreme Personality of Godhead gets pleased. Next paragraph. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments that these Karmakanda ritualistic ceremonies, although contaminated, contains touches of devotional services because whenever there is a performance of an yajna, Lord Vishnu is given us central portion. This is very important because even a little endeavor to please the Lord Vishnu is bhakti and is of great value. ये बात important line है. थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास करते हैं हाँ भगवान को प्रसन्न करने का तो वो बहुत हाई ग्रेट वैल्यू बन जाती है उसकी. A tinge of bhakti purifies the material nature of the performances, which by devotional service gradually come to the transcendental position. Therefore, although such yajnas are superficially material activities, the results are transcendental. Such yajnas as Surya Yajna, Indra Yajna, and Chandra Yajna are performed in the names of demigods, but these demigods are body parts of the Supreme Personality of Godhead. The demigods cannot accept sacrificial offerings for themselves, but they can accept them for the Supreme Personality of Godhead. Just as the departmental tax collector of the government cannot collect taxes for his personal account, but can realize them for the government. Any yajna performed with this complete knowledge and understanding is described among us as Brahma Arpanam, or the sacrifice offered to the Supreme Personality of Godhead. Since no one but the Supreme Lord can enjoy the results of sacrifice, the Lord says that He is the actual enjoyer of all sacrifices. Bhoktaram Yajna Sarvaloka Maheshwaram. Sacrifices should be performed with this view in mind. As Bhagavad Gita, as stated in Bhagavad Gita 4.24. Brahma Arpanam, Brahma Avil, Brahma Agno, Brahmana Udam, Brahmana Yuvatena, Gantavyam, Brahma Karma, Samadhina. A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to the spiritual activities.
in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. The performer of sacrifice must always keep in view that the sacrifices mentioned in the Vedas are meant to satisfy the Supreme Personality of Godhead. Vishnu Aradhyate Santa, Vishnu Puran 389. Anything material or spiritual done for the satisfaction of the Supreme Lord is understood to be the actual yajna, and by performing such yajna, one gets liberation from the material bondage. The direct method of getting liberation from the material bondage is devotional service, comprising the 9 following methods. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanivedanam. ठीक है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, पर थोड़ा ज्यादा ही लंबा है। तो आप देखेंगे, अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स को श्री प्रभुपाद ने बहुत बहुत एम्फेसिस दिया है। बताना चाहेंगे कौन कौन से पॉइंट्स पे दिया है एम्फेसिस परपोर्ट के माध्यम से? हाँ, श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत में जैसे एक पॉइंट प्रभुपाद बहुत बार लिखते हैं कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का गोल क्या है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड को सेटिस्फाई करना। बहुत बार लिखा है, इसी परपोर्ट में 2-3 बार आ गया है ना। और क्या बार बार लिखते हैं प्रभुपाद? और लिखते हैं कि हमको किस प्रकार से मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज से डिटैच होने के बारे में कार्य करना चाहिए। और प्रभुपाद ने क्या लिखा है? पर्सनल इम्पर्सनल को काफी बार एक्सप्लेन किया है, हाउ इम्पर्सनल से हमको पर्सनल फीचर ऑफ पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ गॉड में फोकस करना है। और किसके बारे में बताया? जगह जगह पे प्रभुपाद ने जब भी मौका मिला तो हरि नाम की महिमा के बारे में बताने लगा। भले ट्रांसलेशन में कुछ नहीं भी हो, पर प्रभुपाद ने परपोर्ट में हरि नाम को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हरि नाम के बारे में बताया है, इम्पर्सनल पर्सन के बारे में बताया है, सेटिस्फाइंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड के बारे में बताया है, और किस चीज के बारे में बाइबल ने दिया है? सर्विस, डिवोशनल सर्विस। अल्टीमेटली किसी भी योग की बात का प्रभुपाद जी उसको डिवोशनल सर्विसेज पे ले आए हैं। ये चीज हम देखते हैं। और एक चीज आपको कैसे हम बॉडी ना होकर के सोल है इसके बारे में बताते हैं। तो इग्नोरेंस की वजह से क्या हम बार बार भूल जाते हैं, है ना। बंगाली बोलते हैं भूले गए। देखिए जैसे टेबल आपने साफ किया, बहुत अच्छे से साफ किए, तो क्या एक हफ्ते बाद गंदी नहीं होगी? होगी, फिर से साफ करनी पड़ेगी। बाइक की आपने कितनी अच्छी सर्विसिंग करवा ली है, क्या दोबारा सर्विसिंग नहीं करनी पड़ेगी? करवानी पड़ेगी। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने फॉर्मूला दिया है, नित्यम भागवत सेवया। तो जो है हमको भागवत की सेवा करनी पड़ेगी, ताकि क्या होगा, हम जो है दोबारा से रिचार्ज हो सके। मोबाइल को आपने 100% चार्ज कर लिया, अब क्या दूसरे दिन चार्ज नहीं करना पड़ेगा? क्या आपको करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम जो है वी कीप ऑन फॉरगेटिंग, बैटरी कीप ऑन डिस्चार्जिंग, डस्ट कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। तो इसलिए दोबारा से हम कर पड़ेगा। एक बार एक पंछी जो है ऊपर आकाश में पहुंच गया, अब सोचे हम थोड़ी हमको ज्यादा पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे, बस अब हम ग्लाइड करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, थोड़ी देर ग्लाइड कर सकता है, उसके बाद फिर से उसको पंख तो फड़फड़ाने ही पड़ेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए ऑन डेली बेसिस वी हैव टू पे दिस इंस्टॉलमेंट। इसलिए हम लोग रोज 16 बार आकर जब करते हैं। जैसे हम लोग रोज जो है श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं तो भूल जाएंगे। मैं एक समय कितना अच्छा चेस खेलता था, अब मैं किसी नए व्यक्ति से भी हार सकता हूँ, क्योंकि मैंने 12 साल से प्रैक्टिस ही नहीं की। तो दैट इज द थिंग। तो वी हैव टू practice Krishna consciousness always. Spirituality में if we are not moving forward ना, we can't be stagnant. या तो आगे जाएंगे या तो थोड़े समय में पीछे आ जाएंगे, है ना। हम एक जगह से स्टैग्नेंट नहीं रह सकते।
एसोसिएशन किसी न किसी का तो लेंगे ही सही, या अच्छे का लेंगे तो खराब का मिल ही जाएगा अपने आप, है ना। और कलयुग तो कैसा युग है कि इसमें जैसे एक सिंपल रिवर बह रही है, उस पर आपने कागज की बोर्ड बना करके डाल दी, तो वो भी जिस स्पीड से रिवर बह रही है उसी स्पीड से वो भी बहना शुरू कर देगी। से 15 किलोमीटर पर आवर पे रिवर बह रही है, उसमें अगर आपने एक कागज की बोर्ड डाल दी तो वो भी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहना शुरू कर देगी, है ना। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना, तो पाप कर्म तो करेंगे करेंगे, अलग से एंडेवर करना पड़ेगा अगर आपको पाप कर्म से बचना है तो पहले के युगों में इतना ज्यादा पास नहीं था। अब देखिए पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एकमात्र वेजिटेरियन कंट्री है ना, जिसको एक प्रॉपर, पर इंडिया में तो कितना ज्यादा मीट ईटिंग होता है। विदेश की तो आप बात छोड़े, दिमाग वाला को बहुत रेयरली कोई मिलेगा कि वो प्योर वेजिटेरियन। अब अमेरिका जाएंगे आप कोई प्योर वेजिटेरियन जो इस कौन से भी कनेक्टेड नहीं है, सब प्योर वेजिटेरियन मतलब ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से कहीं कोई मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, यूके कहीं भी जाएंगे आपको नहीं मिल पाएंगे, है ना। मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स इतना इतना प्रोमिनेंट हो चुका है ये। तो परीक्षित महाराज जैसा आप जानते हैं कि बहुत क्रोध में आए थे जिस समय उन्होंने देखा था करीब पर्सोनिफाइड जो है वो किस प्रकार से गाय को और बैल को पीट रहा था। तो उन्होंने क्षत्रिय थे, तलवार निकाल करके सोचा कि इसको हम जो है संहार कर देंगे, पर कलयुग ने तुरंत ही सरेंडर कर दिया। किसी क्षत्रिय की कोई अगर सरेंडर करते तो उसकी भी हत्या नहीं करते, बल्कि उनको प्राण दंड से छोड़ देते। तो जो कि कली पर्सोनिफाइड ने सरेंडर किया महाराज परीक्षित को, इस कारण से परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। तो उस समय कलयुग ने क्या बोला, ये तो मेरे ही तो योग है ये, हाँ ये द्वापर युग तो है नहीं, कलयुग मेरा योग है, मैं इस युग में कैसे जा सकता हूँ, तो मुझे आप कुछ स्थान दीजिए रहने के लिए। तो जाकर के परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है, अधर्म के तो 4 खंभे होते हैं, है ना, मांसाहार परहेज 4 यहाँ पर करते हैं, इन 4 जगहों पे आप निवास कर सकते हैं। तो उस समय तो परीक्षित महाराज के राज्य में कोई 4 नियम ब्रेक ही नहीं करता था। तो ऐसी स्थिति में कलयुग ने कहा एक और जगह दीजिए, तो फिर अनएक्यूमुलेटेड गोल्ड, नहीं ऐसा 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 सोना जो कि भगवान की सेवा में नहीं लगा है, बल्कि लोगों ने अपने स्वार्थ, अपनी ग्रीड सेटिस्फाई करने के हिसाब से उसको एक्यूमुलेट किया हुआ, तो वैसा सोने में वो 5वें स्थान दिया गया था। तभी आप देखे हैं, मैं एक बार 1995 में जब 10 साल का था, तब भी मैं ध्यान करता हूँ कि डिग्रेडेशन इतना नहीं हुआ था, है ना। मीनाक्षी माता जी आपकी कितनी एज है? अच्छा ठीक है, रामेश्वर भगवान को आपकी कितनी एज है? 43। कौन सी ईयर में पैदा हुए थे? 78। अब देखिए आपको थोड़ा सा 95 के बारे में नॉलेज होगा, 17 साल के आप हो गए तो उस टाइम, है ना। अब आप बताइए 95 में वर्ल्ड कितना अलग था, है कि नहीं? मतलब ये तो मेरे को भी याद है। हाँ आपको भी याद है, आप तो सिर्फ 5 साल के थे। मैं 3 साल का था। अच्छा अच्छा, तो देखिए मतलब 2000 के पहले का era और 2000 के बाद के era में कितना कितना डिफरेंसेस आ गए। पहले हमारे घरों में शादी होती थी ना, तो किसी को सिगरेट पीने तो बहुत छोड़ छोड़ के पीता था, कहीं कोई बड़े देख ना ले। और अभी कोई सिगरेट नहीं पीता है तो उसको बोलते हैं कि तुम सिगरेट ही नहीं पीते। मतलब पहले बारात में शराब वगैरह कोई का पी लेता था तो कोई बड़ा पकड़ लेता था तो वहीं पे थप्पड़िया देता था। और अभी जो है इट्स अ कॉमन कल्चर कि सभी लोग मतलब चाचा भतीजे सब एक साथ ही बैठ करके रात में पीते हैं। हाँ पार्टी। तो इस प्रकार से मैं इनफैक्ट जब रोजा साइट में जब काम करने के लिए गया था रिलायंस में, तो वहां पे हर पार्टी में वो लोग नॉनवेज और शराब रखते थे। तो हमने किसी भी पार्टी में जाना बंद कर दिया था, उन्होंने कहा हम पार्टी में जाते ही नहीं है। इस प्रकार से प्रोफाइल अपनी उस प्रकार से डिफाइन करते थे। तो the degradation is continuously increasing. तो because it's Kali Yuga, so it's sure that degradation will come. But enlightened sages worships Kali Yuga. Why?
क्योंकि जितने क्विकली और जितने फास्टली इस कलयुग में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं वो दूसरे युग में संभव नहीं है ना। इस कारण से जैसे सुबह सुबह हम लोग चैंटिंग किया, तो मेरी चैंटिंग कॉन्सेंट्रेशन ठीक ही था, एटलीस्ट शुरुआत की 12 महीना 1 महीना भी मैं यहाँ सो गया था करते करते, अलग बात है, थोड़ा थक गया था, बाकी शुरुआत की 12 महीना का कॉन्सेंट्रेशन मेरा ठीक ही था। तो in that way by attentive chanting we can do a lot। मतलब हमको सवेरे होने की जैसे पानी में जा करके तो तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमको तो इस प्रकार से हम रोटी को भी घर में बैठ करके जब अगर शुरू करेंगे तो भी भगवत धाम जा सकते हैं। So in that way it's very important that we understand the importance of bhakti yoga। Actually हमको मतलब सुपर हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है, या बल्कि ये बोल सकते हैं कि असली सुपर हीरो की डेफिनेशन हमको रीडिफाइन करने की आवश्यकता है ना। The person who is daily studying Srila Prabhupada's book for one hour, person who is daily chanting 16 rounds, person who is serving Vaishnavas, है ना, so that way only he will become super hero। इस प्रकार से अभी आप देखिए कि बस कितने सारे वीडियोस हैं जिसमें मैं बता सकता हूँ आपको कि लोग कितनी कितनी मेहनत करते हैं अपने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर करने के लिए। तो वहां पे वो ईगो सेटिस्फैक्शन में चलता है बेसिकली, दे वांट टू सेटिस्फाई देयर ईगो, क्योंकि कुछ तो भी उल्टा पुल्टा काम करते हैं। जैसे अभी आपके पास प्रोजेक्टर नहीं है, नहीं तो मैं दिखा था एक, मतलब आप सोच सकते हैं एक जो पतली सी नीडल रहती है, वो कितनी नीडल एक व्यक्ति अपने सिर में लगा सकता है, थोड़ा अंदाजे से बताइए। वो जो एक्यूप्रेशर वाली नीडल नहीं आती है, थोड़ा सा पेन होता है उसमें, ज्यादा पेन नहीं होता, इसने कराया होगा तो देखा होगा, बहुत ही माइनर पेन होता है उसमें। तो कितनी नीडल कोई व्यक्ति अपने चेहरे में लगा सकता है? एरिया पूरा एरिया सिर का 1000 अरे नहीं आप तो एकदम ही मतलब हवा में उठा दिया अपने बात के उठाएंगे 1000 20 to 100 समथिंग 2200 पूरा चेहरा भर के था, उसको कुछ माला पहनाने के लिए आए थे तो माला भी नहीं पहना पाए थे, पूरा इस प्रकार से भर गया। दूसरे व्यक्ति ने 15 कील अपनी नाक में घुसेड़ ली पतली वाली कील इस प्रकार से नाक में अंदर ली थी। तो people do what not, so in that way you will see that ego, for satisfying one's ego one pays a lot of price। अच्छा देखिए जितने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, उसकी अगर आप यूटिलिटी वैल्यू देखेंगे तो कुछ नहीं है उसकी, मतलब यूटिलिटी वैल्यू कुछ है ही नहीं। दे आर डूइंग समथिंग व्हिच इज कैचिंग द अटेंशन ऑफ पीपल, दैट्स ऑल। एक व्यक्ति ने अपनी नाक के टिप पे एक 30 फीट का जो एक डंडा रहता है वो टिका करके बता दिया। यूटिलिटी वैल्यू 0 बट कैचिंग वैल्यू इज वेरी हाई। So people have energy, people have potential, but somehow or other, since they are misdirected, so that's why being the part of misdirected civilization, they are wasting their energy here and there. Ultimately, everyone is endeavoring. Some are working for money, some are working for power, post, and position. Some are working to impress others for satisfaction of all. हम लोग VIP रोड में थे भोपाल में, तो वहाँ पे लोग बाग आते थे, बहुत अलग अलग प्रकार के करतब दिखाते थे। कोई अगला चक्का उठा लेता था बाइक का, तो कोई पिछले चक्का उठा लेता था बाइक का, उस प्रकार से गाड़ी को चला करके दिखाते थे, वहीं पे गोल गोल उसको घुमा देते थे। So in that way you will see that people are really endeavoring a lot when it comes to impress others, but ultimately the real efforts are to be made in terms of improving the quality of our devotional services, that will give the real benefit। उसके लिए क्या सबसे पहले तो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना जरूरी है। दिस प्लैनेट इज नॉट ऑल एंड ऑल, दिस लाइफ इज नॉट ऑल एंड ऑल, है ना। अभी देखिए मैं कंटेम्पलेट काफी करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं भी कभी मतलब इस प्रकार से मुर्गी बना होगा, बकरा बना होगा, किसी कसाई घर में गया होगा, काटा गया होगा, so much of pain I have already accepted in my life,
कभी नरक लोक की यातनाएं तय की होंगी, कभी स्वर्गलोक में भी हो करके आए होंगे घूम फिर करके। तो ऑलरेडी कितने कितने एक्सपीरियंसेस कर चुके, खाली एक ही कार्य नहीं किया हुआ है भक्ति बाकी सब कुछ किया अपन ने, है ना। ऐसा नहीं है कि पिछले जीवन में नहीं थे, पिछले जीवन में थे, पिछले जीवन में भी एक सेट ऑफ पेरेंट्स रहे होंगे, है ना, जिन्होंने मुझे बहुत प्रेम किया होगा, और वो भी अब पिछड़ गया, मालूम नहीं किधर गए, लेकिन पिछले जीवन में भी रहे होंगे। So that way, अगर हम थोड़ा सा कंटेम्पलेट करते हैं तो ultimately we'll come to the same point, same conclusion, that ultimately the main objective of life is self-realization, serving the Supreme Personality of Godhead. So contemplation is very important, introspection is very important, taking the stock of our consciousness. अल्टीमेटली ये कॉन्शियसनेस ही, ये सटल बॉडी जब कंप्लीटली प्यूरिफाई हो जाएगी, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार तीनों कंप्लीटली प्यूरिफाई हो जाएंगी, देन वी विल बी एलिजिबल टू गो बैक टू गॉडहेड. तो द लिविंग एंटिटी हैज innumerable experiences accepting different forms of body. आपको मालूम है साइंटिस्ट फोबियास को एक्सप्लेन करते हैं कि पिछले जीवन में किसी की मृत्यु ऊंचाई से हुई है गिर करके तो उसको हाइट फोबिया होगा, कोई व्यक्ति जल करके बना है तो उसको फायर फोबिया होगा, किसी व्यक्ति जो है वो पानी में डूब करके हुई है तो क्या फोबिया होगा, वाटर फोबिया हो जाएगा उसको. इसी प्रकार से अलग अलग फोबियाज जो है ये जनरेट होते हैं. तो गहन चिंतन की आवश्यकता है. प्रभुपाद बोलते थे कि श्रवणम की बात होता है मननम, फिर होता है निधिध्यासनम, फिर होता है वंदनम. श्रवण मीन्स व्हेन वी आर हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, तो श्रवणम. अभी क्या चल रहा है, श्रवणम चल रहा है, इसको आप और कंटेम्पलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मननम. उसको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर जाएंगे तो निधिध्यासनम, और अप्लाई करेंगे आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जिनको आप शेयर करेंगे दूसरों के साथ, उसको बोलेंगे वंदनम. दैट इज प्रीचिंग. द रियल प्रीचिंग हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच वी हैव ऑब्जर्व्ड इन आवर लाइफ. What Srila Prabhupada was doing, he was basically able to see the spiritual truth and he wanted to protect the people from getting degraded. The whole world is running after prayers. Prabhupada wanted them to run after prayers. तो परीक्षित महाराज जिस समय कली को ये 4 स्थान दिए थे, 5वां स्थान दिया था, तो काफी कॉन्फिडेंट थे कि इस प्रकार के पाप कार्य में तो कोई हमारी जनता लिप्त होगी नहीं और सब परिणाम करके भगवत धाम चले जाएंगे. कितना अच्छा योग है. हाँ, और कलियुगी मुस्कुरा रहा था कि माला तो हम किसी को करने नहीं देंगे और 4 नियम तोड़वा के नहीं है कि नहीं. सो दैट्स व्हाई अभी देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो मेट्रो सिटीज है, यहाँ पे पाप का रेट कितना ज्यादा है. थोड़ा सा दूर जाओ आपको मीट शॉप इस प्रकार से मिल जाती है दिल्ली, है ना, थोड़ी दूर पर. नोएडा में तो थोड़ी दूर में वो मीट शॉप मिल जाती. करताल ब्रदर की एक दुकान मिलेगी, ढूंढते रह जाओगे नहीं मिलेगी. इस प्रकार से जिस भी चीज की डिमांड है उस चीज की सप्लाई है. The world is running on the basis of demand supply relationship. एक भक्त ने बोला प्रभुपाद हम जो काउ स्टार्टर हाउसेस उनमें बम छोड़ा देंगे उसको. प्रभुपाद ने कहा दिस इज नॉट लाइक स्टॉपिंग काउ स्टार्टर, क्योंकि उसकी डिमांड है ना तो उसकी सप्लाई भी आई जाएगी. बट अगर आप डिमांड ही अगर कम कर पाओ किसी चीज की, सप्लाई तो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, है कि नहीं. जैसे पहले फ्लॉपी आती थी, फ्लॉपिंग पे डिमांड बंद हो गई तो फ्लॉपिंग कंपनी क्लोज हो गई. कैसेट्स आती थी, हम लोग उसको टेप में चलाते थे, तो डिमांड कम हुई, सप्लाई भी कम हो गई, है कि नहीं. पेजर आते थे, पेजर डिमांड कम हुई, सप्लाई भी कम हो गई, है कि नहीं. तो इन दैट वे डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप से सारी चीजें चलती है. अब देखिए आप मायापुर जाएंगे, आप वृंदावन जाएंगे, वहां पे आपको कितनी मीट शॉप, कितनी लिकर शॉप मिलेंगी, बहुत कम, क्योंकि डिमांड ही बहुत कम है. परंतु आपको प्रदन करता की दुकानें बहुत सारी मिल जाएंगी. क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है.
तो डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप पे बेस्ड चीज है। आज इस्कॉन के प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग रख देते हैं, जैसे कुछ एकादशी बहुत सारे लोग करना शुरू कर दिए, अलग अलग लोगों ने एकादशी का जो कुछ जो होता है सामान वगैरह वो देना शुरू कर दिया। सेकेंड एग्जांपल देखिए, जैसे आपका ये अभी ऑल्टर्स भी लोगों ने शुरू कर दिए। केवल पहले इस्कॉन उज्जैन ऑल्टर बनाता था, अभी अलग अलग लोगों ने ऑल्टर्स बनाना शुरू कर दिया, वुडन कार्विंग ऑल्टर्स। क्यों? क्योंकि इस्कॉन के डिवोटीज बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, तो अलग अलग ऑल्टर की डिमांड आती, तो इन दैट वे डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप में बेस्ड। जितना अच्छा हमारा प्रीचिंग रहेगा उतनी ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस चीजों की डिमांड रहेगी, तो अपने उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। एंड अल्टीमेटली वन थिंग इज श्योर कि हम पूरे वर्ल्ड को नहीं बचा सकते, एटलीस्ट अपने आप को, और जो व्यक्ति हमसे सुनने के लिए तैयार है उसकी तो हम हेल्प कर ही सकते हैं, है ना। तो सेकंड चीज शिव बहुत बता रहे हैं कि एक डायमंड शॉप में आप सब्जी मार्केट जितनी भीड़ एक्सपेक्ट मत करो, है ना। एक मछली मार्केट में जितनी भीड़ रहती है उतना आप एक्सपेक्ट करोगे कि डायमंड शॉप में हो, तो एक्सपेक्टेशन में ही प्रॉब्लम है। तो इतनी ज्यादा कलयुग में इतनी ज्यादा भीड़ इस प्रकार से नहीं आने वाली है ना। आज हमारे कृष्णा कॉन्शियस में कितनी अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड होते हैं, उनके व्यूज बहुत हाई नहीं जा सकते। गुरु महाराज के कितनी अच्छे लेक्चर्स हो, उनके व्यूज ऐसे मिलियंस में नहीं जाएंगे कि 15 मिलियन व्यूज हो गए, करेक्ट। बिकॉज पीपल आर नॉट, people's consciousness is not so high that they will be able to appreciate these things. अभी देखिए, अमुक लीला को एक अट्रैक्टिव कंटेंट देते हैं स्पिरिचुअल के साथ, तो जाकर के उनके व्यूज अच्छे जाते हैं, उनसे ज्यादा व्यूज गौर गोपाल प्रो के चले जाते हैं, क्योंकि वो उतना एकदम डायरेक्ट स्पिरिचुअल कंटेंट नहीं देते। उनसे ज्यादा व्यूज विवेक बिंद्रा प्रो के चले जाते हैं, क्योंकि बहुत बिजनेस लाइन में डील करते हैं, है कि नहीं। तो दैट्स हाउ इट गोस। तो प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस का उतना ज्यादा कभी भी नहीं रहेगा, परंतु जैसे थोड़ा थोड़ा हम डाइल्यूशन करते हैं तो लोग बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, या सो दैट वे एक डिटर्मिनेशन, एक कन्विक्शन हमारे जीवन में होना जरूरी है कि देखिए भाई, कोई दूसरा भगवत धाम जाए चाहे नहीं जाए, हमको तो जाना है ना। है कि नहीं भाई। आग जली पड़ी है मकान में, अगर लोग बाग फिर भी भागने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो एटलीस्ट अपनी जान तो हम बचा सकते हैं, है कि नहीं। अपनी और कुछ एक लोग जो हमें हमारी बात सुनने वाले हैं उनकी जान तो बचा ही सकते हैं। So in that way, it's very very important that we try to save ourselves by application of Bhakti Yoga. एक एनालिसिस हम अपने खुद के जीवन में करके देख सकते हैं कि अभी तक की लाइफ में जितना ज्यादा हमको दुख मिला है, उतना ज्यादा सुख नहीं मिला। एक तराजू में अगर दुख को रखेंगे और सुख को रखेंगे, तो सुख का बलना बहुत ही हल्का रहेगा, दुख का बलना बहुत ही ज्यादा रहेगा। इस प्रकार समझ सकते हैं कि संसारियम दुखालयम शाश्वतम, क्योंकि दुखालय तो यहाँ पे दुख का कोटा हमेशा ज्यादा रहेगा। ये कंपैरेटिव एनालिसिस के हिसाब से चलेंगे ना, तो देयर आर मेनी पीपल हु मे बी विशिंग टू बी लाइक यू, सोचेंगे अच्छा रोनी गुड़गांव में रहते, क्या बात है, वेल सेटल्ड जॉब है, वाह भाई वाह, मकान बढ़िया है ना। बट इट्स नॉट लाइक दीस थिंग्स विल आर गोइंग टू गिव यू कंटीन्यूअस प्लेजर। सो दैट वे एक सही ट्रांसेंडेंटलिस्ट जब चीजों को रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, तो उसका यही कंक्लूजन आता है कि नथिंग मटेरियल इन दिस वर्ल्ड हैज द एबिलिटी टू सैटिस्फाई मी। तो फिर उसका मटेरियल चीज वहीं पे फिर रुक जाता है। Nothing material in this world has the ability to satisfy me. We have to accept certain things to maintain the body, but main goal should be spiritual progress, because nothing material in this world has the ability to satisfy me. So that way उसका material चीज वहीं पे पूर्ण विराम उसका लग जाता है। कामा नहीं, पूर्ण विराम। तो क्यों कामा के बाद तो सेंटेंस कंटिन्यू हो जाता है ना। So in that way, that is the thing. तो एक मध्यमाधिकारी का एक बहुत प्रोमिनेंट लक्षण होता है, खाटा गोपीनाथ ने बताया था। मैंने तीन लेक्चर्स दिए थे गणेश ठट मध्यमा सीरीज पे, ठीक है। तो वो आप लोग सुनना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें बहुत सारे मैंने एस्पेक्ट्स कंपेयर किए, गणेश ठट कैसे सोचता है, मध्यमा कैसे सोचता है।
वैसा। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर कनिष्ठ मध्यम अधिकारी का रहता है कि he is very much convinced about the futility of material enjoyment and futility of this material nature. उसका बहुत हार्डकोर कनेक्शन आता है कि भौतिक जगत में इतनी शक्ति नहीं है कि हमको सेटिस्फैक्शन दे सके। जबकि कनिष्ठा जो भक्ति करता है साथ साथ में कहीं ना कहीं उसको रहता है वो, है ना, आशा रहती है उसको मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। ये फोन दे देगा, वो फोन दे देगा। कुछ का endeavor इस प्रकार से material रहता है। जबकि मध्यमाधिकारी केवल अपनी बॉडली नेसेसिटीज को फुलफिल करने के साथ चीजों को एक्सेप्ट करेगा, परंतु उसका मेन फोकस कहाँ रहेगा? उसका मेन फोकस जो है वो स्पिरिचुअल ट्रूथ को एक्सप्लोर करने में रहेगा। और अगर उसको प्रसन्न भी होना है तो वो आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होने का प्रयास करेगा। ये एक बहुत ही ग्रॉस लेवल पे डिफरेंस है कनिष्ठ और मध्यमा के बीच में। इन चीजों को डिस्कस करना आसान है, पर ऐसा नहीं कि लाइफ में अप्लाई करना इतना आसान काम है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग है। उस कंडीशनिंग को आप जस्ट एक वाक्य सुन करके ब्रेक नहीं कर सकते, उसकी मेहनत करनी पड़ती है उस कंडीशनिंग को। देखिए मैं बोलूं कि हमको कल मैं 100 किलो का भार उठाऊंगा, कहने में क्या जाता है, मैं जब असली में उठाने जाऊंगा तो खड़ा हो जाएगी, है ना। कल मैं 10,000 लोगों को प्रसाद खिलाऊंगा, बोल दिया मैंने, पर 10,000 लोगों को प्रसाद बनाने के लिए 40,000 चपाती चाहिए पड़ेंगी, है कि नहीं। तो उसका तो अरेंजमेंट बोलना कोई भी चीज आसान है, पर वो करना बड़ा मुश्किल। So that way, speaking spiritual truth is far more easier than to practically apply them in one's life. आपने भी एक्सपीरियंस किया है। So that way, जिस प्रकार से शक्ति केवल खाने से नहीं आती, खाना पचने से आती है। खाने से आती है तो सब लोग अपने बच्चों को खूब भर भर के खिला देते, काजू किशमिश बादाम पिस्ता और सब कुछ, पर उससे कुछ भी नहीं होता। शक्ति जो है पचने से आती है, जितना पचेगा खाना उतना शक्ति। इस प्रकार से जस्ट ज्ञान डालने से कुछ नहीं होता है, रियलाइजेशन से। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन लाइफ इज रियलाइजेशन, नॉट जस्ट द थ्योरेटिकल नॉलेज, तो कहीं में मिल जाएगा, है ना। एंड रियलाइजेशन कम्स व्हेन वी सिंसियरली एंडेवर एंड व्हेन गुरु इज प्लीज्ड विद अस, कृष्णा इज प्लीज्ड विद अस। द रियलाइजेशंस आर नॉट achieved, but they are awarded by Guru and Krishna. When they award, when they see the sincere implementation of truth, sincere implementation of scriptural principles in our life, तो वहां से फिर हमको जो realization award किए जाते हैं मास्टर के द्वारा। So that way we have to cross mental barrier, emotional barrier, we have to cross egoistic barrier। ऐसा बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं हमको, तो जाकर के हम स्पिरिचुअल ग्रोथ में अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। मेंटल बैरियर क्रॉस करना इतना आसान काम नहीं है, माइंड कहीं ना कहीं आपको घुमा करके ले जाएगा, लाइक दैट। सो लेट्स प्रे एंड लेट्स होप दैट वी रिमेन फर्म एंड picked up in our Krishna consciousness and do not get deviated by the different agents of Maya. Let's dry up the illusion situated within our system, so that only reality remains. And the Krishna consciousness is all about moving from illusion to reality, to see the things as they are. Thank you very much. Hare Krishna. किन्हीं को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई कमेंट हो तो बता सकते हैं। ये मेरे को प्रभु जी लास्ट का पॉइंट बहुत अच्छा लगा। Realizations are awarded, not achieved when we endeavor to practice devotional service sincerely and seriously. So because I've faced that thing many times, that simply having knowledge is not enough. Understanding, even having understanding also is not enough, but to have realization is something different. But once you are realized, then it remains with you. Knowledge means that knowledge is that okay, you can give advice to others, but you yourself are failing at that point. That is knowledge, like at level of knowledge only. But realization is something that you have put it implemented on yourself. Yeah, now you are convinced, then that thing will transfer.
to others. And sincere endeavor and sacrifice are required. Sacrifice are required in terms of, जैसे किसी को आप बोल सकते हो किस प्रकार से हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना? बहुत कन्विंसिंग लेक्चर आप दे सकते हो, सोचे कि इतना कन्विंसिंग बोले तो हम वैसे ही जल्दी उठते हो। परंतु जब हमको रात में एक तरह का मैनेजमेंट हमारा गड़बड़ है, रात में हम लेट सोए, ऊपर से we want a comfortable sleep, तो उस पर उठना एकदम आसान काम नहीं है, है ना? To tell others that you should never lie is an easy thing, but many a times we face the circumstances where we have to say lie in order to protect something. To tell about others, chant attentively is an easy thing, but when it comes to our chanting of 16 hours attentively, that पहाड़ उठाने वाली activities है ना? Yes. That's like that. Like that. Sincere endeavor is Yeah. very important. लोग जी थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताइए ना कि व्हाट इज हरे कृष्ण महामंत्र एंड इस युग में व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट एंड व्हाई दिस इज ओनली द वे. हरे कृष्ण महामंत्र is like umbilical cord. बच्चा जब माता के गर्भ में रहता है उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? umbilical cord के माध्यम से मिलता है ना? हरे कृष्ण महामंत्र is like mother's milk. छोटा बच्चा जो और कुछ भी नहीं खाता है, केवल माता का दूध पीता है, उससे उसको पोषण जो है मिल जाता है. So in that way, we are the spirit soul and looking for spiritual nutrition. The spiritual nutrition comes from Hare Krishna, because that is not different from Krishna. So कोई भी चीज आप जब कोई भी चीज नई रहती है, नई नवीली रहती है, तो उसके साथ में enthusiasm आना स्वाभाविक है, पर पुरानी चीज के साथ में enthusiasm नहीं आता. करेक्ट. बट हरे कृष्ण महामंत्र हम एक इनिशियल फेज के साथ में चालू करते हैं, बाद में धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते रहते हैं. तो हमारा अगर हम थोड़ा सा उसमें अटेंशन का एलिमेंट उसमें डाल रहे हैं, है ना? अटेंशन इज लाइक स्वीटनेस. अभी आप सिमई की खीर बना रहे हो, शक्कर नहीं डाली आपने, सिमई की खीर देखने में लगे कि सिमई की में बिठा के रहेगी, तो उसमें जितना ज्यादा अटेंशन पार्ट डलता जाता है उसमें, उतना उतना हमारा चैंटिंग में भी स्वीटनेस बढ़ती चली जाती है, बिकॉज़ अटेंशन इज दैट लाइक शुगर. सी सिंपली अटेंशन हैज नो वैल्यू. कोई व्यक्ति जस्ट अटेंशन के साथ में मैं इस स्टैंड को देख रहा हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. इस प्रकार से सिंपल शुगर डजंट हैव मच वैल्यू, बट व्हेन दैट शुगर इज एडेड इन द स्वीट राइस, देन इट कैरीज अ लॉट ऑफ वैल्यू. Similarly, when that attention is added in the process of chanting or hearing or deity worship, then it carries a lot of value. ऐसा zeros के अपने आप में वैल्यू नहीं, पर उसका एक लग जाता है तो बहुत वैल्यू बढ़ जाती है. तो spiritual activity plus attention has a very glorious results. तो क्योंकि भगवान का नाम और नामी बनता नहीं है, scriptures बताते हैं, because name is transcendental. तो इस कारण से नेम जब निकलता है, कानों के माध्यम से अंदर जाता है, तो अंदर हमारी शुद्धिकरण लाता है. इट प्यूरिफाइज आवर हार्ट. जीवन में सारी समस्याएं जो है वो अशुद्धि की वजह से, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज. ग्रीड इज एन इम्प्योरिटी, सेल्फिशनेस इज एन इम्प्योरिटी, जेलसी इज एन इम्प्योरिटी. तो इसको हमको हार्ट को प्यूरिफाई करने की आवश्यकता है. जिस प्रकार से बोलते हैं ना कि खाने का सही आनंद जो है वो भूखे पेट में, जब आप अच्छे से फ्रेश हो लिए हो, खूब कॉन्स्टिपेशन है, आपको 2-3 दिन से कब्ज है, आपके सामने अच्छा प्रसाद रखने के आप आस्वादन नहीं कर पाओगे, है ना? तो इसी प्रकार से जब हमारे अनर्थास आर लाइक स्टूल, जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है ना, तो कोई बहुत मजा आता है हमको. उसके पहले भी तो हम मंदी भूख के साथ में बैठते हो, खाते, तो इस प्रकार से ब्लॉक कर देते ना हमारी भूख को. Eagerness comes when the anarthas are removed, na one becomes very eager to perform devotional service, and उसको भूख रहेगी भक्ति की, इस प्रकार से. तो इसीलिए अनर्थ in attentive chanting directly hits the anarthas. In attentive chanting doesn't hit anarthas.
जैसे हम लोग के गम थे तो 10-12 दिन में गंदे हो जाते हैं, 12-15 दिन में, तो उसको जस्ट हम पानी में डुबाएंगे निकालेंगे तो उससे कुछ नहीं होता। रोज रोज का पसीना मैल उसका एक्यूमुलेट हो जाएगा ना, उसको हमको तेज गर्म पानी में थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में सब डालना पड़ता है, तो उससे फिर गला करके रखते तो पूरा मैल रोज छोड़ देते, तो उसका ऐसा मोटा कलर हो जाता है, हमको लगता है किसी दिन बाद जब छत हो गया तो ऐसा रहता है उसका। इसी प्रकार से इतने लंबे समय से हम जो इतना हृदय में डस्ट एक्यूमुलेट करते आ रहे हैं, उतने आसानी से निकलने वाली है। तो हमको बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 6 पेपर क्लियर करने पड़ते हैं सेमेस्टर क्लियर करने में, है ना। जैसे हमारे अलग अलग पेपर, लस्ट का पेपर, ग्रीड का, एंगर का, प्राइड एंड विजन, 6 पेपर निकालने पड़ते हैं हमको, तो जा करके सेमेस्टर हमारा क्लियर होता है। सर ओम और कृष्णा की चैंटिंग में क्या डिफरेंस क्या है? भगवद गीता में एक जगह लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओम एंड द नेम ऑफ कृष्णा। तो इसलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के पहले ओम नहीं लगाते, जबकि आप बाकी सारे मंत्र के पहले देखोगे ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णा के आगे नहीं। कृष्ण क्योंकि दैट इज सेम ना, स्टार्ट से ओम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलना पड़ता था इससे। तो ओम इज द निराकार ब्रह्म एंड कृष्ण इज द साकार ब्रह्म, so that is the difference. Yeah. So this mantra is really very powerful, really very powerful, and its energy is to be experienced by involving attention, by introducing attention. तो इसकी वैल्यू जो है वो बहुत गुना बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि हम नाम अपराध से नाम आभास के स्तर में जाते हैं अटेंटिव चैंटिंग। शुद्ध नाम तो हमारे बस की बात ही नहीं, हम केवल अटेंटिव चैंटिंग के माध्यम से नाम अपराध से नाम आभास के स्तर में आने का प्रयास करते हैं। सक्सेस इज गारंटीड फॉर द सिंसियर प्रैक्टिशनर। रामेश्वर बारंगपुर इज सिंसियर चैंटर। तो अभी शुरू भी नहीं करी है हम लोगों की। तो बोले तो रामेश्वर बारंगपुर इज सिंसियर चैंटर। वोट नहीं दिया माता जी ने, वोट कार्ड आगे जोड़ दी। वोट नहीं दिया ना। नहीं, इसमें ऐसे कह सकते हैं सिंसियर चैंटर इन टाइम्स चैंटिंग भी लगते हैं। Okay. So I will redefine my statements. When Rameshwar Barangpur chants in the morning hour, then he is a sincere chanter. What मिल गया आपको? टाइम कम है वो वाला। ऑनलाइन पे मेरे ख्याल से एक प्रश्न है परमेश्वरी माता जी। अच्छा, माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो एक्चुअली मुझे आपकी एक लाइन नहीं समझ आई, थोड़ा सा साउंड क्लियर नहीं था कि क्या अभी बोला कि गारंटी है Success is guaranteed for a sincere practitioner. ओके ओके, इसी Thank you प्रकार so much. भगवद गीता में लिखा है जो सेंटर यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं? जब सोल बॉडी से निकल जाती है, Where did it go depends upon like the subtle body, कि उसकी subtle body और कर्मा किस प्रकार से। तो 99.999999 केसेस में व्यक्ति तो भगवत धाम नहीं जाता है, तो उसको जो है कोई ना कोई दूसरी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति ने भक्ति योग थोड़ा भी किया है तो नेहा विक्रम आश्वस्ति प्रत्यवाय विद्यते एप्लीकेबल हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको निचली स्पीशीज में नहीं जाना पड़ता, भले उसने पाप कर्म की चुना किया, उसको पाप कर्म जो है वो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के साथ ही दिए जाएंगे। और अगर व्यक्ति ने भक्ति भी नहीं की और पाप कर्म किया तो सीधा फिर वो उसके पाप कर्म उसको जो है वो निचली वाली में ले जाएंगे। अब पाप अगर इतना ज्यादा है कि उसको इस अर्थ प्लैनेट में उसको दे पाना बहुत ही मुश्किल है, पाप की तरह किया,
तो उसको फिर नरक लोक में ले जाएंगे जहाँ पे उसको एक ऐसी बॉडी दी जाएगी जो कि उतनी सफरिंग झेल नहीं पाए। हाँ, यातना शरीर उसको दिया जाएगा। जैसे एनिमल शरीर भी यातना शरीर है, पर तो किसने इतने ज्यादा पाप किए हैं कि उसको वो बॉडी में लेंगे तो वो झेल नहीं पाएगी वो बॉडी। तो वैसी स्थिति में फिर यातना शरीर जो है वो उसको नरक लोक में भेजना पड़ेगा। वहां से फिर लौट करके आकर के फिर वो किसी निचली योनि में ही जाएगा और वहां से फिर अपने बचे हुए पाप जो है वो क्लियर करेगा। है ना? कुछ पाप जैसे क्या 2000 के नोट के बराबर है, तो भाई एक एक सिक्के 2000 करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उसके फिर 2000 के नोट चाहिए पड़ेंगे आपको। अब कुछ पाप ऐसे हैं कि ठीक है, मतलब निचले होने में जाकर के वो कैंसिलेशन कराया जा सकता है। वैसे पुण्य का भी रहता है, किसी ने इतने पुण्य कर दिए, इतने पुण्य कर दिए कि इस मटेरियल बॉडी में उसको उतना हैप्पीनेस देने ही संभव नहीं है। है ना? जैसे किसी को हम इस मटेरियल बॉडी में एक साथ 1000 जो है अल्फांसो मैंगो का जूस कैसे पिलाएंगे? 2-3 पीने के बाद तो मना ही कर देगा, और उसका तो सुख का कोटा इतना ज्यादा हो चुका है, तो उसको फिर स्वर्ग लोक भेजा जाएगा। वहां पे वो ऐसी बॉडी है जो कि मतलब बहुत ही वास्ट अमाउंट ऑफ प्लेजर को एक्सपीरियंस कर सकती है ना? तो वहां पे जाकर के फिर व्यक्ति बहुत ज्यादा प्लेजर एक्सपीरियंस करता है स्वर्ग लोक में, क्योंकि यहाँ पे बॉडी की कैपेसिटीज पेन और प्लेजर दोनों को एक्सपीरियंस करने की बहुत लिमिटेड है ना? करंट व्यक्ति को लगता है 10-15 सेकंड में बढ़ जाता है, हाई वोल्टेज करंट है। अब उसको हमको अगर 10 घंटे लगाने की इच्छा हो तो कैसे लगाएंगे? वो नरक लोक में लगा के जाके लगाएंगे। In that way, too much of pleasure and too much of pain, since material body cannot absorb, that's why bodies of heavenly planet and Narak Loka are visible for it. ऐसा। और स्वर्ग लोक से व्यक्ति लौट करके आता है तो फिर उसके जो थोड़े बहुत जो पुण्य रहते हैं, मतलब जो स्वर्ग लोक के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं थे, वो फिर उसको यहाँ पे कोई एक अच्छी फैमिली में, कोई जमींदार की फैमिली में, कोई अच्छी एजुकेटेड फैमिली में उसका जन्म होता है, ताकि वो बाकी बचे हुए पुण्य को यहाँ पे आकर अप्रिशिएट कर सके। पाप का कोटा है तो पाप का कोटा कैसा हो जाता है। और भक्त जो है, जो कि भक्ति ही करना चाहते हैं, वो लोग फिर स्वर्ग लोक पे नहीं जाते, वो लोग फिर नेक्स्ट लाइफ में किसी डिवोटी घर में जन्म लेते हुए बचपन से ही उनको एक डिवोशनल कल्चर मिलता है और वो अपना भक्ति का प्रोसेस जो है वो आगे करते हैं। ऐसा। Thank you. आपका कोई प्रश्न है? समझ आया क्लास कुछ बताया? नहीं समझ में आता है तो फिर बाद में बताते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, रिपीट करते हैं ऐसे। गुड। जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम लोग जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं भक्ति, तो हमारा तो और भी संग है, नॉन भक्त है, जो भक्ति का संग, तो मतलब हमारे मन में जैसे दूसरे के प्रति थोड़ा हीन भावना आने लग जाता है ना धीरे धीरे, कि हम इतने चीज को जैसे हम ये समझ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सामने वाले नहीं कर रहे हैं, मी टीचिंग है, ये सब है, तो ये अच्छा तो नहीं है ना कि लाइक हम ऑफिस में चलिए मुझे 20 लोग हैं या 25 लोग हैं, मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, बाकी लोग फॉलो नहीं कर रहे। We never think that we are great and others are inferior. We consider that we are fortunate that we got bhakti and association devotees, but the other person was not so fortunate कि उसको भक्ति और सब मिल जाता। तो ये नहीं प्रेडोमिनेटिंग कॉन्शियसनेस रहती है भक्ति। वो ये नहीं सोचता कि देखो मैं मेडिटेटिंग नहीं करता, मैं इंटॉक्सिकेशन गैम्बलिंग नहीं करता, मैं महान व्यक्ति और ये लोग जो है वो पतित है। वो सोचता है कि आई एम मोर फॉर्चुनेट देन देम, बट आई गॉट द मर्सी ऑफ श्री प्रभुपाद एट द राइट टाइम। दैट इज द राइट कॉन्शियसनेस। तो फिर वो नियोफाइट और बद्धेवाधिकारी में ये अंतर है कि नियोफाइट सोचता है कि देखो हम कितने महान व्यक्ति हैं कि हमको जो है भगवान ने सिलेक्ट किया है हमको भक्ति देने के लिए, बल्कि we consider us fortunate. And Prabhuji, or for them we can also show some compassion and we can give them prasadam. Yeah. Compassion can be. Compassion. अब हमारे देखिए अभी इस्कॉन मूवमेंट में जो लोग आ रहे हैं सभी तो बिगड़ैले लोग थे। सभी तो बिगड़ैले है कि नहीं? और क्या? बिगड़े से ही सुधरे हैं। बिगड़े से ही सुधरे। तो किसी ने compassion दिया तो तभी तो हुआ ना। तो yes, correct. तो सुभद्रा जी कोई कमेंट? क्या बात है, what is the sign of intelligence? This is the sign of intelligence.
This ninefold process is described in this verse as Vishuddha Vigyan Gana, or satisfying the Supreme Personality of Godhead directly by transcendental knowledge, concentrated on the form of the Supreme Lord Vishnu. This is the best method for satisfying the Supreme Lord. One who cannot take to the direct process, however, should take the indirect process of performing yajnas for the satisfaction of the Vishnu. कितनी बार इस पकवान में आपको satisfaction of Vishnu, satisfaction of Vishnu, पांचवी बार आया है ये वर्ड है ना, satisfaction of Vishnu. यज्ञ Vishnu is therefore called Yajnapati, Sriyapatim, Yajnapatim, Jagatpatim. The Supreme Personality of Godhead, deep scientific knowledge is concentrated to the supreme point. For example, medical science knows something superficially, but doctors do not know exactly how things happen in the body. Lord Krishna, however, knows everything in detail. Therefore, his knowledge is Vigyan Ghana, because it does not have any of the defects of material science. The Supreme Personality of Godhead is Vishuddha Vigyan Ghana, concentrated transcendental knowledge. Therefore, even though he accepts karma, materialistic yajnas, he always remains on the transcendental position. Therefore, the mention of Anek Guna refers to the Supreme Personality of Godhead, many transcendental qualities, body is not affected by the material qualities. The different kinds of material personality or physical elements are also gradually transformed into spiritual understanding, because ultimately there is no difference between material and spiritual qualities, for everything emanates from the Supreme Spirit. This is realized by the gradual process of realization and verification. One vivid example of this is through Manas, who took to meditation the forest to achieve material benefits, but ultimately became spiritually advanced and did not want any benediction for the material profit. He was simply satisfied with the association of the Supreme Lord. Ashram means determination. Gentile conditioned soul has a determination for material profit. But when these desires for material profit are satisfied through performance of yajna, will gradually achieve the spiritual platform, then his life becomes perfect. Sri Bhagavatam 2-3 times therefore recommends Akama Sarva Kamova Moksha Kama Udarthi Tivrena Bhakti Yogena Jadeka Purusham Panam. Everyone with an Akam devotee, Sarva Kama Karmi or Moksha Kama, a Jnani or Yogi is encouraged towards the Supreme Personality awarded by the direct method of devotional service. In this way, one can get both material and spiritual profit simultaneously. प्रॉपर्टी क्यों मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लिखते हैं? कुछ लोग जो है ज्यादा भौतिक चेतना में, तो बिना मटेरियल प्रॉफिट के स्पिरिचुअल प्रॉफिट डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. दे वांट बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉफिट. One thing we should always realize that Supreme Personality of Godhead is our real genuine well-wisher. हमारे बारे में इतना कोई नहीं सोच पाएगा, ना समझ पाएगा जितना भगवान सोचते हैं. ये एक इनबिल्ट होना चाहिए. No one in this world has the capacity to love us more than Krishna. कोई आपको इतना सोच भी नहीं सकता इतना प्रेम करने का जितना भगवान करते हैं. भगवान जितना हमको प्रेम करते हैं वो किसी की कल्पना से भी परे है. तो why not to think about someone who loves us so much? ज्यादातर लोग भगवान के पास जाते हैं अपना काम बनाने के लिए कि हमारा कुछ काम बन जाए इसके लिए. बट प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको भगवान के पास जाना चाहिए प्रेम पाने के लिए. कई बार श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरुवार ने बताया था कि हमको भगवान से भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि हमको आध्यात्मिक चीजें मांगनी चाहिए. भौतिक को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, जितना हो जाए तो अच्छा है. एक भागवतम का पर्पट पढ़ रहा था अभी थोड़े दिन पहले, उसने भी यही लेना है that it is not that Krishna cannot give, he can easily give that thing in fact, but what is difficult for him to give is bhakti, because then he becomes bound. Once he gives, then he becomes bound, because that is very easy for him to give. Even liberation is very easy. Yeah. But bhakti, with that he becomes bound, so that he does not give easily. मैंने अपने जीवन में देखा हो
एक दो डिजायर को छोड़ करके कोई भी चीज जो मैंने स्ट्रॉन्गली डिजायर किया अपने जीवन में मिल ही गई है। हाँ कोई भी चीज जो हाँ रैंक 1 पे डिजायर रही है वो जनरली मिल ही गई है। रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 वाली भाई फुलफिल ना हो पाए डिजायर। रैंक 1 पे जो डिजायर रही है वो फुलफिल जनरली हो जाती है। तो ठीक है यही पे रहना है। जय जय श्री कृष्ण भगवान की। इसलिए सजेंद्र कृष्ण प्रभु की जय। गॉड हरि हरि बोल।